Hello students. So we are solving some problems from mechanical properties of fluids. So let's see the problem number 22. First I will read the problem. How much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius from the soap solution having surface tension 0.07 Newton per meter? Okay. So in this problem they have given us two values. One value is of radius, that is 2 centimeter. So first I will convert it into meter, that is 2 into 10 to the power minus 2 meter, and surface tension, that is 0.07 Newton per meter. So I can write this as 7 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. So in this problem they are asking us what is the work done. So how much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius from the soap solution having surface tension 0.07 Newton per meter? So we have initially the area will be 0. Okay, initial area क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी तक तो बबल फॉर्म नहीं हुआ है. लेकिन जब बबल फॉर्म होगा, so for A2 we have to write 2 into 4 pi r square. सो बेसिकली द एरिया ऑफ स्फीयर, जो बबल होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा. यहाँ पे इनसाइड भी क्या है, एयर है, और आउटसाइड भी क्या है, एयर है. तो यहाँ पे दो फ्री सरफेस है. ओके, सो वन फ्री सरफेस इनसाइड एंड अनदर फ्री सरफेस इज आउटसाइड. जब भी एयर के कांटेक्ट में लिक्विड का लेयर आता है तो वो क्या होता है, फ्री सरफेस. इन केस ऑफ सोप बबल देयर आर टू सरफेसेस, सो इनर एंड आउटर, देयरफॉर वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन एरिया बाय 2. एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. लेकिन हमें यहाँ पे जो एरिया है उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द चेंज इन एरिया. सो हाउ कैन राइट, सो डी ए दैट इज चेंज इन एरिया, इट विल बी A2 माइनस A1. यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या है, चेंज इन एरिया. सो 2 into 4 दैट इज 8 पाई आर स्क्वायर माइनस A1. A1 का वैल्यू क्या है, 0 है. ओके, सो द वैल्यू ऑफ A1 दैट इज 0. सो यू हैव टू राइट DA इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज DA. नाउ वी हैव टू फाइंड द DW. DW क्या है, वर्क डन है. अभी वर्क डन जब फाइंड करेंगे हम तो उसके लिए क्या होगा, See, dW is equal to TdA. So what is this? This is the relation between surface tension and surface energy. ये relation हमें मालूम है. So dW is equal to TdA. Just now need to put the values. अभी values आपको put करने का है. Okay. यहाँ पे हम values अभी put करेंगे. So here the value of T कितना है, 7 into 10 to the power minus 2, and DA का वैल्यू क्या है, 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर. So just 7 into 10 to the power minus 2, 8 पाई का वैल्यू है 3.142. क्या है R का वैल्यू, R इज द रेडियस. रेडियस का वैल्यू हमें दिया है 2 into 10 to the power minus 2, इसका होगा स्क्वायर. सो नाउ 7 8 जा 56, ओके, इनटू ये 10 to the power minus 2, 3.142, 2 का स्क्वायर होगा 4 into 10 to the power minus 4. जस्ट राइट इट केयरफुली. And now by using log you have to solve this. Okay, so इसका जब हम multiplication करेंगे तो finally we will get 0.703 into 10 to the power minus 3 जूल. So अभी ये जो कैलकुलेशन है आपको लॉग टेबल अच्छी तरह से यूज़ करके कैलकुलेशन यू हैव टू डू. So the finally we have 0.703 into 10 to the power
-3 joule. So this is our answer. Okay, let's see next problem. Problem number 23. Okay. So first I will read the problem. A rectangular wire frame of size 2 cm into 2 cm is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed. If the size of the film is changed to 3 cm into 3 cm, calculate the work done in the process. The surface tension of soap film is 3 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. ओके, सो इनिशियली जो एरिया था वो क्या था, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. A2 का वैल्यू क्या दिया है हमें, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. और जो सरफेस टेंशन का वैल्यू है T का वो है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर. सी, so very easy problem. Just here try to understand one concept. There is one rectangular frame. Okay, ये इस तरह का क्या है, एक rectangular क्या है, frame है. Okay, let us consider rectangular frame. So जब भी हम rectangular frame देखते हैं, so in this frame you can see ये यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड का एक लेयर होगा, एक सोप फिल्म हम कहेंगे इस पे. तो अभी बेसिकली क्या होता है, ऊपर का जो लेयर है वो एयर के कांटेक्ट में है, सो दैट इज़ वन फ्री सरफेस. एंड जो नीचे का भी लेयर है वो भी क्या है, एयर के कांटेक्ट में है. जब भी एयर के कांटेक्ट में लेयर आएगा तब क्या होगा, हमें फ्री सरफेस मिलेगा. बेसिकली देयर आर 2 फ्री सरफेस. इनिशियली जो एरिया था वो था क्या, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2. क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई हम 2 से, क्योंकि लास्ट जो प्रॉब्लम था उसमें भी हमने देखा था कि इन केस ऑफ सोप बबल वहाँ पे भी क्या था, 2 सरफेस एरिया, 2 फ्री सरफेस था, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. यहाँ पे भी जब भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा तो ऊपर भी फ्री सरफेस होगा, नीचे भी फ्री सरफेस होगा. फ्री सरफेस क्या होता है इसके बारे में हमने थ्योरी में पढ़ा है कि जब भी लिक्विड का सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगा तब हम उसे क्या कहेंगे, फ्री सरफेस कहेंगे. सो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर दैट विल बी 4 and here 2, so we have 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड सिमिलरली अभी एरिया क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है. तो एरिया का यहाँ पे लेट अस कंसीडर, अभी साइज क्या हो गया, बढ़ गया. तो अभी यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 इंटू 3 9 एंड 2 दैट विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो वी हैव A1 and A2 and that is T. So what we have to find in this problem? Calculate the work done in the process. So we have to find that work done. That is nothing but dW. Okay. So just here you have to understand, first area was A1, second is A2. 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, हमें ऊपर भी एक फ्री सरफेस है और नीचे भी एक फ्री सरफेस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है. हाउ कैन यू फाइंड द चेंज इन एरिया. चेंज इन एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे हम. चेंज इन एरिया क्या होता है, DA होता है. ओके, सो DA किस तरह से फाइंड करते हैं हम, DA जो होता है वो होगा A2 माइनस A1. Okay, so this will be A2 minus A1. So sometimes we are writing A1 minus A2, sometimes we are writing A2 minus A1. Why so? क्यों वैसा करना पड़ता है, जो कौन सा एरिया बड़ा है यहाँ पे A2 बड़ा है तो उससे क्या करना पड़ेगा, जो छोटा एरिया है उसे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है. वेरी इजी. सो वी हैव 18 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज DA. कितना होगा यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर.
अभी आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि हमने जो यहाँ पे यूनिट किया है यूज़ वो है न्यूटन पर मीटर, सो दैट इज़ द एसआई यूनिट. बट हियर वी आर गेटिंग सीजीएस यूनिट, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द मीटर स्क्वायर. अभी हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे? सो दिस इज 10 into 10 to the power minus 2 square. So we have a 10 into 10 to the power 10 into 10 to the power minus 4. Okay, so 10 into 10 to the power minus 4. So ये होगा 10 to the power minus 3. सेंटीमीटर था, वो क्या होता है 10 to the power minus 2, उसका स्क्वायर मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2, minus 2 into 2 दैट इज minus 4. यहाँ पे +1 है, -4 दैट इज 10 to the power minus 3. ओके, नो आई थिंक यू कैन गेट द इजिली आंसर. अभी डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? dw इज इक्वल टू TDA. That formula we have to use. So this value is of dA. Okay, so you can find this answer, that is dW is equal to TDA. Use that formula. Okay, so we have a dW is equal to TDA. So from this you have to just put the value 3 into 10 to the power minus 2. Okay, this is minus 2 and into 10 to the power minus 3. This is minus 2 into 10 to the power minus 3. So what is the answer? 3 into 10 to the power minus 5 joule. Okay, वर्क डन का यूनिट क्या होगा? जूल. So this is the answer for the problem number 23. Okay.